हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिलिको संजीवनी हेल्थ रेसिपी प्रेजेंट्स आहार स्वस्थ से भरा। हमारा आज का रेसिपी नंबर 28 है खिचड़ी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बन भी जाता है। घर पे कोई भी ओकेशन हो या फिर ऐसे भी आप इसको बना के खा सकते हैं। Food often tends to reflect the history and culture of the land where it was first created, and today's dish is a prime example of this. This mellow dish can be found in kitchens all over India in various avatars. It is the ultimate comfort food for Indians, and yet we have never valued it enough. It is there during sickness in health, through poverty and wealth. I am talking about the dish which has come a long way from the kitchens of the royals in India. Before the times of biryanis and pulaus, this simple dish was very special in the kitchens of the kings. Today's dish, our very own one-pot meal, khichdi. Khichdi is India's version of culinary comfort, known as bisibele bhat in Karnataka, Pongal in Tamil Nadu, Pulagam in Andhra, khichdi in West Bengal, and khichdi in many parts of northern India. There are as many recipes for khichdi in India as there are households, and the only necessary ingredients includes rice and lentils. All over India, palak khichdi and masala khichdi are quite popular, along with sabudana khichdi during the fastings of Navratri. In Gujarat, khichdi is eaten with a bowl of lightly spiced curry, a yogurt-based curry, whereas Tamil Nadu Pongal is liberally laced with clarified butter. If you go to Himachal Pradesh, then Himachal version of this rice dal medley is loaded with kidney beans and chickpeas. Karnataka's fiery bisibele bhat has delicious additions such as tamarind, jaggery, seasonal veggies, curry leaves, dried coconut and kopak buds. In West Bengal, Bhoger Khichdi is a staple at Durga Puja pandals and is served with a mishmash of leafy green vegetables called labda. At the home of food-loving Bengali, it's the pulao-like bhuni hui khichdi studded with assorted vegetables and served with deep-fried fish. That rules. So, where it has come from? According to historian Mohsina Muqaddam, khichdi is one of the most ancient foods in India, yet one that has hardly changed. Its name has its origin in the Sanskrit word khicha, which translates to a dish made with rice and pulses. The gastronomic literature of ancient India also has many mentions of the krusaranna, an early relative of khichdi that had ingredients such as curd and sesame seeds. Famous philosopher of ancient age Chanakya, who was the prime minister of Maurya Emperor Chandragupta Maurya, has cryptically wrote about a balanced dish that could possibly be taken for khichdi. Chanakya's prescription for a balanced meal was about 1.4 pounds of rice, quarter pounds of lentils, 1 by 62 pounds of salt, and 1 by 16 pounds of clarified butter taken together. His contemporary and famous writer Megasthenes, who stayed in the royal court of Chandragupta Maurya for years, provides a detailed account of how rice and lentils formed the popular dish in India and were eaten together. Ibn Battuta, the famous Moroccan traveler who visited India in the 14th century, wrote, "Munj is boiled with rice, then buttered and eaten. This is what they call kishri, and on this they breakfast every day." During the 16th century, French traveler Jean-Baptiste Tavernier came to India 6 times and noticed khichdi being prepared with green lentils, rice and clarified butter, and referred to it as a peasant's evening meal.
The Mughal cooks took this humble meal from the streets and gave it to a gourmet appeal for the royals. During the Mughals dynasty, the classic khichdi went through various adaptations with the addition of strong spices, dry fruits and nuts. In Ain-e-Akbari, Abu Fazl mentioned nearly 7 variations of khichdi. Afanasy Nikitin, a Russian adventurer who traveled to India, declared that Jahangir popularized khichdi. Even Aurangzeb was fond of it, particularly Alamgiri khichdi, which was made with an Anglo-Indian twist featuring fish and eggs. During the British Raj, it was called kedegri. The British who took this recipe back to their home country, and by the 19th century, kedegri had become a sophisticated breakfast or brunch dish in England that continues to remain popular even now. Khichdi is the perfect balance of carbohydrates and protein. It helps ease digestion and assimilation and is hence recommended by the doctors during illness for fast recovery. According to the doctors, it also heals the intestine wall. People who suffer from gluten sensitivity or celiac disease or opt to go on gluten-free as a lifestyle change can eat khichdi. It packs enough nutrition and yet is really light on the stomach. Khichdi is one of the most healing meals in Ayurveda because it is tridoshic. It balances all the 3 doshas, Vata, Pitta and Kapha. According to the American author and Ayurvedic physician Vasant Lad, in his book, The Complete Book of Ayurvedic Home Remedies, written that a 5-day khichdi fast using plain khichdi with just some chopped cilantro leaves added will cleanse the system and help to strengthen the memory. Khichdi has become an integral part of both India's gastronomic heritage and colloquial stories. Remember the offered saying, "Khichdi ke chaar yaar, dahi papad, ghee aur achar"? Interestingly, in 2017, khichdi has been chosen as the brand India food. Now, if all this food talk has made you hungry, then go and cook some yummy khichdi. हमारी आज की इस हेल्दी टेस्टी रेसिपी को रिप्रेजेंट करने वाली है मिसेस पारोमिता शोरकर, जो सदा जाओ मार्केट की रहने वाली है। हमारे आज की इस हेल्दी टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है पोटैटोज यानी कि आलू, कॉलीफ्लावर यानी कि बंद गोभी, कैरेट यानी कि गाजर, राइस एंड येलो लेंटिल्स यानी कि सेद्धू चाल और मूंग दाल, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। हमें लगेगा भाजा मसाला जिसके अंदर आता है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा और कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया। हमें चाहिए कसूरी मेथी, हमें चाहिए बे लीफ यानी कि तेज पत्ता, ड्राई रेड चिली यानी कि लाल सूखी मिर्च, क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, कार्डमम यानी कि इलायची, सिनेमन यानी कि दालचीनी, क्लोव्स यानी कि लवंग, स्टार एनीज यानी कि चक्री फूल और बंगाली गरम मसाला। हमें चाहिए घी, हमें चाहिए ऑनियन यानी कि प्याज, जिंजर यानी कि अदरक, गार्लिक यानी कि लहसुन, ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च, टमाटो यानी कि टमाटर। इन सब का हमें एक पेस्ट बना लेना है। हमें चाहिए रेसिन्स यानी कि किशमिश, काशू यानी कि काजू के बादाम, हमें चाहिए कोकोनट यानी कि नारियल और हमें चाहिए सॉल्ट यानी कि नमक अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो। तो फिर चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलिको संजीवनी प्रेजेंट्स आहार स्वास्थ्य से भरा। और आज जो है एक लॉकडाउन रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और दिस रेसिपी इज़ अबाउट अ वेरी कंफर्टिंग फूड। और ये फूड जो है ये हम सबके घर पे जो है ये बनती हैं। और आज क्योंकि मौसम बाहर थोड़ा क्लाउडी हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। और ये डिश जो है ये डिश है नथिंग बट दी होमली खिचड़ी। अब खिचड़ी जो है बंगाली किचन में गोविंदो भोग जो एक फ्रेग्रेंट कैटेगरी की चावल होती है, राइस होती है, उससे उसके बगैर जो है हम लोग खिचड़ी सोच नहीं सकते। पर मेरे पास जो है अभी गोविंदो भोग है नहीं और घर से बाहर निकलना इस वक्त जो है कुछ ठीक भी नहीं है, हमें नहीं निकलना चाहिए। तो जो है उसी से ये कोशिश है कि कुछ अलग सी एक खिचड़ी जो है वो बने।
और ये नॉर्मल चावल जो मेरे पास है, हम लोग इसको बंगाली में बोलते हैं सेद्धो चाल। ये सेद्धो चाल जो है मेरे पास है बाश काठ। इसको मैंने थोड़े मूंग दाल के साथ बॉईल करके रखा है। मेरे पास करीबन 2 कप जो है वो चावल के थे और 1/4 कप जो है मूंग दाल की थी। अच्छे से धो के फिर मैंने उसको प्रेशर कुकर में बस 2 ही सीटी जो है वो लगा ली है। और ये है चाल और दावल जो है ये बनी हुई है यहाँ पे। ये मेरे पास कुछ कैरेट्स और आलू हैं जो क्यूब्स में कटे हुए हैं। ये फूल गोभी मुझे मिल गई थी और इसको मैंने थोड़ा नमक और हल्दी जो है उसके पानी में थोड़ा बहुत उबाल लिया है। और ये मेरे पास है कुछ स्पाइसेस मसाले जिसमें है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी है और ये एक स्पाइस मिक्स है जो आप मेरे रेसिपीज़ में देखते होंगे। ये है काली मिर्च या ब्लैक पेपर, क्यूमिन सीड्स या ज़ीरा और इसमें है कोरिएंडर सीड्स या धनिया। ये 3 जो हैं इनका मैंने एक ड्राई रोस्ट करके तवे पे फिर इनको मिक्सी में ग्राइंड करके ये जो है ये पर्टिकुलर जो मसाला है वो तैयार हो जाती है और इसको हम लोग भाजा मसाला बोलते हैं। ये मेरी जो है भाजा मसाला जो है बहुत तरीके की होती है, हर कोई अपना खुद का जो है भाजा मसाला बनाता है, पर ये जो है ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया तो मैं इसी को बनाती हूँ। ये मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें सूखी मिर्च है, लाल तेज़पत्ता है, दालचीनी है, लवंग है, इलायची है, ज़ीरा है और ये एक स्टार अनीस की कली मेरे पास पड़ी हुई थी, तो ये सारे हैं। ये है नथिंग बट कसूरी मेथी और इसको हम लोग डालेंगे। इससे जो है इसकी फ्लेवर जो है बहुत अच्छी आती है। ये बंगाली गरम मसाला है, ये है घी, ये है एक पेस्ट जो मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और जिंजर के साथ बनाई है। इसमें टमाटर भी एक डला हुआ है। ये एक मसाला मैंने बना लिया है। जो बंगाली भोगे खिचड़ी होती है या गोविंद भोग की खिचड़ी होती है उसमें सिर्फ अदरक की पेस्ट जाती है, पर ये जो सेद्धो चाल है वो सिर्फ अदरक से मुझे नहीं लगती अच्छी लगती है, तो ये मैंने एक पेस्ट बना लिया है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसमें एक मीडियम साइज अनियन है, एक टमाटर है, 3-4 हरी मिर्चें हैं, 6-7 लहसुन की कलियाँ हैं और 1 इंच की जिंजर है। ये मेरे पास है कुछ ड्राई फ्रूट्स, इसमें किशमिश और काजू है, इसे हमें तलना है घी में। ये नारियल जो है छोटे छोटे पीसेस में कटी हुई, इसको भी घी में तलेंगे। और हमें चाहिए नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। गरम पानी जो है वो आप रखें पास। और ये जो है ये कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तेल जो है मस्टर्ड की होगी, सरसों की तेल, उससे हम लोग ये बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्लेम को जो है मैंने एकदम से लो कर दिया है और इस वक्त ये मसाले जो हैं मैंने इसमें छोड़ दिए हैं और क्रैकल होने दें। ये जो है एक बहुत ही पुरानी सी जो है मेरे पास पतीला पड़ी हुई थी और इसको मैं बेसिकली खिचड़ी के लिए यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि इसमें सहूलत हो जाती है मुझे। वो खिचड़ी जो है वो एक ही पॉट में बन भी जाती है और सर्व भी हो जाती है, तो इसी वजह से मैंने इसको यूज़ किया है। आप जो है देख सकते हैं बहुत पुरानी है, क्योंकि ये जो है मेरे हस्बैंड जब बैचलर थे उस वक्त की उनकी जो है ख़रीदी हुई है और आज तक हम लोग इसको कभी कभार यूज़ कर लेते हैं। अब मसालों में से जब आपको खुशबू आने लगे और दिखे कि ये बन गई हैं, तो इस स्टेज पे आपको जो है जो आलू और हमारे जो गाजर हैं वो ऐड कर देनी है। फ्लेम बढ़ा दें और ये जो सब्जियां हैं इन्हें आप अच्छे से फ्राई करें। इस स्टेज पे आप इसमें ऐड कर दें 1 टीस्पून जैसा नमक, सब्ज़ी जो है वो जल्दी पकेगी, और थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून, और फिर जो है आप इन्हें अच्छे से फ्राई कर लो जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। पता नहीं कि आज जो है ये मन क्यों किया कि इस पतीले को यूज़ किया जाए। जब मैं शादी करके आई थी तो कुछ पुराने बर्तन जो हैं वो मुझे एक गार्डन में मिले थे और मैंने पूछा था मेरे हस्बैंड से कि ये क्या है, ये कैसे बर्तन हैं, तो उन्होंने कहा था मुझे कि ये जब मैं कॉलेज में खुद जो है पकाता था और खाता था तो ये बर्तन जो हैं ये तब के हैं।
तो आज पुराने हैं पर फिर भी सोचा कि क्यों ना इन्हीं में जो है ये पकाई जाए, और अच्छी लगती है कभी कभार कुछ चीज़ें यूज़ करना। तो आप इसे अच्छे से जो है इसे फ्राई कर लें। अब जब आपको ये जो आलू और जो गाजर हैं ये थोड़े कलर चेंज करता हुआ आप देखें, इनको थोड़ा फ्राई देखें ये हो रहे हैं, इस स्टेज पे आपको जो है ये उबले हुए गोभी जो हमने नमक और हल्दी वाले पानी में थोड़े उबाल लिए थे उसको ऐड कर देना है। गोभी जो है अब सीज़न में तो है नहीं, मिल गई है, तो कभी कभी इसमें जो है कुछ काला सा दाग या कीड़े वगैरह जो है मिल जाते हैं, तो हरदम गोभी की जो है आप ये उबाल के फिर इनको यूज़ करें। और इसकी जो एक अजीब सी स्मेल होती है ना गोभी की, वो भी जो है इस प्रोसेस से जो है वो चली जाती हैं, तो इसीलिए आप इसको ज़रूर किया करें। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जब माँ हमारी हमें खाना बनाना सिखाती हैं, तो जो है ये थोड़ी चीज़ें, ये एक समर वाली जो है खिचड़ी बन रही है। विंटर्स में तो खिचड़ी की बात ही अलग होती है, इतने सारे जो है वेजिटेबल्स में तब डलते हैं, मटर वगैरह, तो तब तो बात ही अलग होती है। तो इसको जो है आप ऐसे चलाते रहें। देखिए जब गोभी भी जो है वो भी थोड़ी आपको भुनी हुई लगे, थोड़ी फ्राई जो है वो लगे, तो आप जो है ये टमाटर और लहसुन और जिंजर, हरी मिर्च, प्याज की जो पेस्ट है अदरक की, वो आप इसमें ऐड कर दें और फिर आप अच्छे से भूनें जब तक ये जो है पानी ना छोड़ दें, खुशबू ना आने लगे इसमें। और ये जो खिचड़ी है ये मैंने अपनी माँ से सीखी है। ऐसे तो सारी ही रेसिपीज़ जो हैं वो माँ से ही जो है हम लोग सीखते हैं, बेसिक रेसिपीज़। मेरे पापा जो थे, बाबा मेरे अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो जो हैं उनको खिचड़ी जो है बहुत पसंद थी। कभी भी जो है मौसम थोड़ा सा जो है क्लाउडी हुआ कि नहीं हुआ और थोड़ी सी बारिश हुई कि नहीं हुई, बिन मौसम की इनको खिचड़ी की तलब होती थी और वो बोलते थे मेरी माँ को कि खिचड़ी बनाओ। तो कभी कभार जो है घर पे हमारे गोविंदो भोग चावल जो है वो नहीं होती थी, तो क्या करें, अब उनको बस खाना ही है, तो माँ जो है वो ये शेतो चाल से ही ये खिचड़ी जो है वो बना देती थी और वो अच्छी लगती थी, बहुत स्वादिष्ट बनती थी। तो उसी का थोड़ा माँ का जो है हाथ का स्वाद तो नहीं आ सकता, पर थोड़ा रिक्रिएट करने की कोशिश जो है वो ये आज मैं कर रही हूँ। देखते हैं कि हाउ इट टर्न्स आउट। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें, बताएं मुझे कि कैसी बनी है। अब जब आपको लगे कि ये मसाले जो हैं तेल छोड़ रहे हैं और जो रॉ स्मेल होती है प्याज अनियन की, प्याज और लहसुन की, अदरक की, वो जा चुकी है, तब इस स्टेज पे जो है जो मसाला हम लोगों ने एक पेस्ट बना के रखा था, जिस मसाले का घोल जो बनाया था, इसको गर्म पानी में मैंने घोल एक बना के रखा था। इसमें वो भाजा मसाला है, हल्दी है और लाल मिर्च की पाउडर है, ये हम जो है इसमें डाल देते हैं। अब इसे आप चलाएं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले जो हैं इंडियन मसाले जब भूनते हैं ना, तो उनकी जो खुशबू, जो उनकी जो रंगत होती है, जो कलर उनका होता है, वो बात ही कुछ और है। इसमें अगर हरे मटर जो हैं वो डलते हैं, अभी तो लॉकडाउन है वरना मैं फ्रोज़न ही डाल दी थी, पर क्या करें, ये भी एक सीख है कि जो है आप उसी से गुजारा करें और भगवान का जो है शुक्र मनाएं कि ये भी जो है नसीब हो रही है। अब आप जो है थोड़ी सी चीनी, 1 टीस्पून जैसी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखाया, पर मैं भूल गई थी, पर आप जो है इसे डालें तो एक फ्लेवर जो है बैलेंस हो जाती है चीनी से और कलर भी जो है वो अच्छी आती है। देखिए ज़्यादा जो है हमें इसे मसलना नहीं है, तोड़ना नहीं है गोभियों को। इस स्टेज पे हमें जो है इसे हल्के हाथ से पकाना है। अब ये जो दाल और चावल जो है
गली हुई। इसमें जो गर्म पानी है, अब इसको जो है हमें अपने सब्ज़ी वाले मसाले वाले सब्जियों में ऐड कर देना। जैसे ही आप जो है ये दाल और चावल जो है सब्जियों में मिला दें, उसे थोड़ा बहुत मिलाएं, तो एक कलर जो है वो दाल चावल में आ जाएगी। और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैंने क्यों कहा कि मुझे इसमें इस पतीले में पकाना जो है वो सहूलत लगती है, क्योंकि इसमें आप खाना जो है अच्छे से चला सकते हैं। और जब आप ये पानी और दाल चावल जो है वो डाल दें, नमक जो है आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं जो है 2 टीस्पून नमक के इसमें अब डालूँगी। हाँ, और फिर इसे मिक्स दे देना है। मिक्स देने के बाद जो करनी है वो है, ये जो थोड़ी सी घी है आप इसमें ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद आप इसे कवर कर दें। खिचड़ी में आप देख सकते हैं कि एक उबाल जो है वो आ चुकी है, और इस स्टेज पे जो है हमें इसमें बाकी की जो घी है वो ऐड कर देनी है। और घी ऐड करने के बाद ये जो बंगाली गरम मसाला है ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, और फिर आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ऐसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे मिक्स कर देना आप इसको, फिर आप इसमें जो है देखिए मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स जो थे मेरे पास, और नारियल जो है थोड़ी हल्की सी तली है। नारियल को ज़्यादा मैंने जो है इसे ब्राउन नहीं किया है, और आप इसे जो है इसमें डाल दें। ये घी में तली हुई है। Give it a mix. स्मेल काश आप तक ये जो है पहुंच सकती। आप अगर घर पे बनाएंगे तो वो ज़रूर पहुंचेगी आप तक। ज़रूर बनाएं इसे घर पे। मछली जो है उसमें उबाल जो है वो काफ़ी देर तक आ चुकी है, और ये पक चुकी है, कलर आ चुका है इसमें। इस स्टेज पे हमें जो कसूरी मेथी है वो इसमें ऐड कर देनी है, और बस खिचड़ी हमारी तैयार। स्मेल इसकी बहुत अच्छी। घर पे आप इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी चैनल जो है आहार सिलिको आहार को ज़रूर ज्वाइन करें। बेल आइकन जो है उसे हिट करना ना भूलें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। अपनी रेसिपीज़ जो हैं शेयर करें, क्योंकि रेसिपीज़ जो हैं वो ज़िंदगी की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से एक पार्ट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। whatever we are eating, whatever we cook, you know, it tells a lot about us. तो ज़रूर जो है आप इसे बनाएं घर पे। इसे बैंगन की जो फ्राई हम लोग बोलते हैं बेगुन भाजा, उसके साथ या पापड़ के साथ, अचार के साथ आप इसे सर्व करें, खाएं। यू कैन सर्व इट विद आलू भाजा ऑल्सो। बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो ज़रूर इसे आप बनाएं घर पे, ट्राई करें। थैंक यू। हमारा एक प्यारा सा ग्रुप है जिसे हम सब प्यार से बुलाते हैं आहार। अगर आप चाहो तो हमारे इस प्यारे से ग्रुप आहार का हिस्सा बन सकते हो, जहां आप जीत सकते हो अट्रैक्टिव प्राइजेस एंड गिफ्ट वाउचर्स सिलिको संजीवनी आहार की तरफ से। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको आपका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर आपकी फेवरेट रेसिपी वीडियो के साथ हमें भेज देना है। अगर आप हुए द लकीस्ट पर्सन तो आपके गिफ्ट्स एंड द वाउचर्स आपके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाएगा सिलिको संजीवनी आहार की ओर से। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से बन जाइए हमारे इस प्यारे से ग्रुप आहार का हिस्सा। सब्सक्रिप्शन इज फ्री फॉर यू।
For any kind of information or requirement, contact us at our Gmail sanjeevni.siddharth@gmail.com or at our contact number 9903500108। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए just go to your YouTube app and over there in that search bar type सिलिको आहार। जब आप सिलिको आहार टाइप करके सर्च करोगे तो आपके सामने सिलिको आहार की बहुत सारी रेसिपीज आ जाएंगी। किसी एक रेसिपी को क्लिक करके आप बहुत इजीली पहुंच सकते हैं हमारे चैनल सिलिको तक। After visiting our channel, subscribe our channel over there। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उसको अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे शो किए गए हुए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कीजिए और उसको ऑल मोड पे भी सेट कर दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नया वीडियोस आपसे मिस ना हो। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा या फिर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।